Good morning, my dear students. How are you? Fine? Okay, that's good. Now you have to solve your books exercise of chapter number 8. And what is the name of your chapter number 8 is skeleton system. Okay, you completely discuss the chapter number 8 in details. Now it's time to complete the book exercise with our understanding. Now, so let's start. Open your books at page number B7 and start to read your question number first. Number 1, A part. Tick the correct answer. You have to tick the correct answers. Okay. Then your first question is, how many bones are there in the skull? आपकी bones skull में कितनी bones होती है? How means how many means आपकी कितनी, ठीक है. How much bones are there in skull? As you know, there are total 22 bones in the skull. There are 14 fixed bones and 8 are मूवेबल. आप क्या कहते हो, 8 आपकी बोन्स होती हैं जो स्कल में आप यूज़ करते हैं एंड 14 बोन आपकी होती है जो आपका फेस बनाने में यूज़ होती हैं. सो दे आर टोटल 22 bones. There are total 22 bones. What protects the spinal cord? What protects the spinal cord? Spinal cord is protected by only and only backbone. ठीक है, आपकी स्पाइनल कोड क्या करती है? ओनली बैकबोन से, जो वर्टिबल कॉलम्स होते हैं, दैट इज प्रोटेक्ट टू स्पाइनल कोड. vertebral column is the part of a backbone. Number 3 question, read this. Which kind of joint allows our head to move up, down and sideways? कि which kind of joint, कि आपका कौन सा joint है जो अलाउ करता है आपके हेड को मूव करने में ऊपर, अप, डाउन एंड sideways, left and right. So skull is connected to the backbone. That joint name is pivot joint. That joint's name is a pivot joint. There is no confusion in this joint. I read about this joint many times. So you have to choose the correct option, that is pivot joint. Now you come to your question number 4. Your question number 4, read this. Which joint allows maximum movement? आपके किस joint में क्या होता है? आपका maximum movement होता है. तो maximum movement आपका किस joint में होता है? मैंने पहले भी बताया था, हमेशा ball and socket joint में आपका maximum movement होता है. So your correct option is ball and socket joint. Okay. Now come to your question number 5. Ear and nose are made up of. Ear and nose, bones नो, मसल्स नो, लिगमेंट्स नो. देन आप बताइए, कार्टिलेज नो करें यस करें? आप मुझे बताएंगे कि आपके जो ईयर और नोज होते हैं वो मोस्टली किससे बने होते हैं बेटा? आपके कार्टिलेज से. सो योर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. ईयर्स एंड नोज आर मेड अप ऑफ द कार्टिलेज. ओके, कार्टिलेज आर सराउंडेड बाय द जॉइंट्स, आर प्रेजेंट सराउंड द जॉइंट्स, अराउंड द जॉइंट्स. जॉइंट्स के चारों साइड आपकी थिक लेयर होती है, इलास्टिक लेयर होती है, दैट इज नोन एज द कार्टिलेज. एंड दिस लेयर is used to make ear and nose in human beings. Now your second type of question is true false. Read the statements carefully and then answer this which statement is true and which statement is false. Your first statement is कार्डिक मसल्स आर वॉलेंट्री इन एक्शन. कि जो आपकी कार्डिक मसल्स होती हैं वो कैसे नेचर की होती है? वॉलेंट्री इन एक्शंस. नो, कार्डिक मसल्स आर इनवॉलेंट्री इन एक्शंस. इनके एक्शंस आपके कंट्रोल में नहीं है. सो यू हैव टू फिल दिस. इट इज फॉल्स. इट इज फॉल्स. ओके. नाउ इट्स सेकेंड ट्रू फॉल्स इज रिब केज प्रोटेक्ट्स द हार्ट एंड लंग्स. वेरी गुड. Rib cage protects the heart and lungs. You have to explain that. कि रिब केज होते हैं वो आपको क्या करते हैं? मैंने पहले बताया था, आपका बीच में आपका स्टर्नम होता है, देन 12 लेफ्ट साइड, 12 राइट साइड, 12 पेयर ऑफ कर्ड बोन्स होते हैं. ठीक है, डेट कलेक्टिवली आपका रिब केज
बोला जाता है उनको, और ये किसको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके हार्ट और लंग्स को. डेट इज ट्रू. सो राइट हेयर ट्रू. नाउ कम टू थर्ड पार्ट. मसल्स आर अटैच टू बोन्स बाय लिगामेंट्स. कि जो मसल्स होती हैं अटैच होती है बोन्स से. कैसे? लिगामेंट से. बोन्स लिगामेंट से अटैच होती हैं या आपके टेंडन से अटैच होती हैं? स्टूडेंट्स बताइए. तो आप यहाँ पे क्या बोलेंगे? फॉल्स. कि जो मसल्स होती हैं वो जॉइंट से टेंडन्स के थ्रू अटैच होती है, नोट बाय द लिगामेंट्स. ओके. देन कम टू योर फोर्थ part of true false. What is your fourth part of true false? Read this carefully. Your fourth part is blood cells are made in the bone marrow. जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कहाँ पे मेड होती है? बोन मैरो. बिल्कुल करेक्ट बात है. डेट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्केलेटन सिस्टम्स. कि आपकी होलो बोन्स में एक फ्लूइड होता है डेट इज़ द रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड सेल्स, एंड दैट फ्लूइड इज नोन एज द बोन मैरो. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. So write here T for the true statement. Now read the statement 5. Cartilage protects the bones by preventing them from rubbing against each other. जो कार्टिलेज होते हैं बोन्स को प्रोटेक्ट करते हैं by preventing them from rubbing against each other. Very good. That is the correct answer. कि वो एक दूसरे को रबिंग ना हो इस वजह से क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं. ये बात आपकी सही है या गलत है? आप मुझे आंसर कीजिए कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है. बिल्कुल सही बात है बेटा ये आपकी. एक मिनट बेटा वेट. नाउ कम टू योर सी पार्ट. डेट इज द थर्ड टाइप ऑफ योर क्वेश्चन. नेम द फॉलोइंग. ओनली वन वर्ड्स और टू वर्ड्स क्वेश्चंस. नंबर 1. रीड योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. आपकी बॉडी में सबसे लॉन्गेस्ट बोन क्या है स्टूडेंट्स? थाई बोन. आपकी थाई बोन होती है. डेट्स नेम इज फीमर. डेट्स नेम इज फीमर. फीमर इज योर लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी डेट प्रेजेंट इन योर थाई. ओके. देन रीड द क्वेश्चन नंबर सेकेंड. द मूवेबल बोन फाउंड इन द स्कल. आपकी मूवेबल बोन होती है जो स्कल में फाउंड करते हो आप. 21 बोन्स आपकी फिक्स बोन्स होती हैं. आपकी जो लोअर जो होता है लोअर जॉ डेट इज द मूवेबल बोन्स. ओके ऑफ द स्कल. नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर थर्ड. द ग्रिडल बाय विच अपर आर्म इज जॉइंट टू द बैकबोन. आपको ग्रिडल बताना है जिसकी वजह से आपका जो अपर आर्म होता है वो क्या होता है? जॉइन होता है. किससे? बैकबोन से. सो the girdle by which upper arm is joined to the backbone that's name is shoulder girdle. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? आप shoulder girdle. that is the answer of the question number थर्ड. कि जो शोल्डर ग्रिडल होता है वो क्या करता है? कनेक्ट करते हैं आपके अपर आर्म को बैकबोन से. ओके. नाउ fourth question. Types of movable joints. There are 4 types of the movable joints. That one is ball and socket joints. Ball and socket joints. Second is pivot joint. Third is hinge joint. Fourth is gliding joint. Okay. Now your fifth question is types of joint present in the shoulders. कि शोल्डर्स में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं आपको उनके क्या बताने हैं? नाम बताने हैं स्टूडेंट. आपके शोल्डर में जॉइंट्स प्रेजेंट होता है डेट्स नेम इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. कि आपके बॉल और सॉकेट जॉइंट्स को आप क्या बोलते हैं? आपका सबसे जो शोल्डर में जॉइंट्स होते हैं डेट नेम इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देयर आर 4 टाइप ऑफ द जॉइंट इन विच शोल्डर्स में जो जॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं डेट्स नेम इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स. ओके. नाउ डू
your let's do exercise in which match the following. Students, there are two options, one and second. You have to choose which is the correct pair. Skull, in which connect with the skull protects the brain. So connect scale with protects the brain. Skull protects the brain. Okay. Backbone, backbone प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कोड. बैकबोन क्या करती है, आपके स्पाइनल कोड को प्रोटेक्ट करती है. ओके. स्टर्नम, स्टर्नम क्या है आपका, वॉलेंट्री मसल्स है. लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स हैं आपके. ठीक है. ए बोन इन द सेंटर ऑफ चेस्ट. सो स्टर्नम इज द रिब केज के केस में आता है, जो आपकी बोन है जो सेंटर ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होती है. दैट इज द नेम ऑफ स्टर्नम. ओके. फोर्थ, फ्लोटिंग रिब्स. फ्लोटिंग रिब्स, फ्लोटिंग रिब्स क्या है आपके, लास्ट टू पेयर ऑफ रिब्स, दैट इज नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स. ठीक है. जो आपके स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती, डेट पेयर ऑफ रिब्स इज नोन एज द फ्लोटिंग रिब्स. सो थाई बोन, थाई बोन इज योर ए टाइप ऑफ ए फीमर बोन. क्या आपका थाई बोन आपका एक फीमर बोन है. ओके. अब आपका बताता है वॉलेंट्री मसल्स. बेटा वॉलेंट्री मसल्स की तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई, मसल्स आपकी कहीं पे आई ही नहीं थी, तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना. ओके. हो गया आपका कंप्लीट. अब आपका आता है इसका सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट आपको क्या कहता है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फिगर्स एंड राइट देयर नेम्स बिलो. आपको क्या करने हैं, फिगर्स को आपको आइडेंटिफाई करना है और आपको इनके नेम्स आपको नीचे राइट डाउन करने हैं. दिस फिगर इज रिलेटेड फ्रॉम द स्कल, सो इट्स नेम इज स्कल. ठीक है. ह्यूमन बीइंग स्कल. दैट इज नोन एज द रिब केज. That is known as the rib cage. And third is your backbone. And third is your backbone. Okay. In which 33 vertebrae are attached with flexible joints. Okay. इसी की वजह से आपकी बॉडी क्या होती है, मूवेबल होती है. अब आपका क्वेश्चन नंबर आता है सी. लेबल द ह्यूमन स्केलेटन गिवन बिलो. आपको इसको क्या करना है, नेमिंग करनी है प्रॉपर. आपका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ पे जो कनेक्ट होता है इसको आप क्या बोलते हैं, स्कल बोलते हैं. तो इसका आपका क्या होगा, आपका स्कल. ओके. देन दिस इज मिडल बोन ऑफ द चेस्ट, दैट इज नोन एज द स्टर्नम. दैट इज नोन एज द स्टर्नम. ओके. नाउ ये आपका क्या था बेटा, फोर हैंड. ये आपका क्या था, फोर हैंड्स. फोर लिम्स बोल सकते हो आप जिसको, क्या बोल सकते हो आप, फोर लिम्स. एंड लेग्स के लिम्स को आप क्या बोलते हैं, हिंड लिम्स. क्या बोलते हैं आप इनको, हिंड लिम्स. ओके. अब आपका जो यहाँ पे आता है इसको आप क्या बोलते हो, रिब केज. क्या बोलते हो आप इसको, रिब केज. वेट 1 मिनट बेटा. इट इज हिंड लिम्स. इसको आप क्या बोलेंगे, हिंड लिम्स. एंड R for rib cage. R for rib cage. And V. V is the vertebral. क्या थे आपके, vertebral column. Okay. Today we complete this exercise. Okay. अब हमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके हॉट क्वेश्चंस बच गए, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. ठीक है. थैंक यू स्टूडेंट्स. Good morning students. How are you? Fine. Students, आज हम अपने स्केलेटन सिस्टम के एक्सरसाइज कंप्लीट करने वाले हैं. आपने टिक द करेक्ट, ट्रू फॉल्स एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस कर लिए हैं. अब आपके शॉर्ट क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं. आपको क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चन नंबर डी. सो स्टार्ट आवर क्वेश्चन नंबर डी. First of all, open your book and read your question from book with me. Okay. Your part number D and your question number first. Question number first from the part D. You, students, read your question number first from your book. Your first question is define a joint. Your first question is define a joint.
Name different type of joints. Name types of joints found in human body. Your first question is define a joint, name different type of joints found in human body. आपको एक joint के बारे में definitions देनी है, then you have to write down different type of joints that found in human body. So answer, what is joint? तो joint आपका क्या होता है, आपने definition में पढ़ा भी था पहले भी, a place where two bones meet. A place where two bones meet. That place is known as joint. That place is known as a joint. Okay students, कोई problem नहीं है यहाँ पे. Then you have to write down the different types of joints found in human body. So types of joints. What do you understand by the types of joints? There are two types of the joint. First is fixed joint and second is the movable. So totally you write down the parts of the joint. Number one is ball and सॉकेट जॉइंट, जिसके बारे में हमने एक्सप्लेन किया था कि बॉल और सॉकेट जॉइंट्स आपके किस तरह से है. ठीक है, आपकी बोन होती है, बोन के एंडिंग में कैसा होता है, सर्कुलर पार्ट होता है. वो सर्कुलर पार्ट आपका कप शेप का आपका क्या होता है, सॉकेट होता है, जिसके अंदर वो फिट होता है. और सबसे ज्यादा फ्लेक्सिबल जॉइंट आपका क्या होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. देन सेकंड इज योर पाइवोट जॉइंट. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द पाइवोट जॉइंट? पाइवोट जॉइंट आपका वो जॉइंट है जिसके अंदर आपकी एक बोन के ऊपर कंप्लीट स्कल आपकी क्या करती है, मूव करती है. that joint is known as pivot joint. For example, backbone connect with the skull. That is the example of the pivot joint. Your third example is hinge joint. आपके जो एल्बो का ही होता है आपका, ठीक है, एल्बो का जो बोन होता है, ये वाला जो आपका सॉरी जॉइंट होता है, that joint is known as a hinge joint. And your fourth is gliding joint. आपकी कलाई होती है जहाँ पे आप वॉच रिस्ट होती है आपकी, यहाँ पे जो ये जॉइंट है जिसकी वजह से फ्लेक्सिबल है, that joint known is a gliding joint. That joint is known as gliding joint. It is the answer of your question number 1. So now you have to read your question number 2. What is question number 2? Students, read from your book. Your second question name is what is tendon? Your second question name is what is tendons? Answer, what is tendons? Tendons क्या होते हैं आपके, मसल्स आपके बोन्स के साथ स्ट्रॉन्ग फाइबर से अटैच होती है, that is known as the tendons. So you have to write muscles are attached to bones with a strong fiber that is known as tendons. That strong fiber is known as the tendons. कि जो आपकी बॉडी में मसल्स होती है, जो आपकी स्किन वाली जो मसल्स होती हैं बोन्स के साथ अटैच होती हैं, उस फाइबर का नाम क्या है आपका, टेंडन्स. उस फाइबर को आप क्या बोलते हो, टेंडन्स बोलते हो. ओके.
ये हो गया आपका सेकंड क्वेश्चन. नाउ यू हैव टू राइट योर क्वेश्चन नंबर 3. रीड योर क्वेश्चन नंबर 3 फ्रॉम योर बुक. What is your question number 3? Your question number 3 is what is cartilage? Your question number 3 is what is cartilage? What do you understand by the word cartilage? What do you understand by the word cartilage? Cartilage कहाँ पे आपका यूज होता है? Cartilage बताइए. आपके मोस्टली जॉइंट्स आपके एक टफ और इलास्टिक सब्सटेंस से कवर्ड होते हैं. दैट सब्सटेंस इज नोन एज द कार्टिलेज. तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? इसी तरह से कि जो मोस्टली आपके जॉइंट्स होते हैं, मोस्टली जॉइंट्स आर कवर्ड विद ए thick elastic substance that is known as cartilage. That substance is known as the cartilage. Okay students, you have understand well कि जो मोस्टली आपके जॉइंट्स होते हैं वो जैसे यहाँ पे आपकी रबिंग होती है तो ये डैमेज ना हो, जॉइंट्स आपके बोन्स डैमेज ना हो, तो उसके चारों साइड एक इलास्टिक एक थिक लेयर क्या होती है, आपके लिगामेंट्स आपके कनेक्ट होते हैं. डेट इज नोन एज द कार्टिलेज. वो क्या कहलाते हैं? आपके कार्टिलेज कहलाते हैं. ओके, ये आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 3 का. अब आपको क्वेश्चन नंबर 4 रीड करना है. प्लीज रीड योर क्वेश्चन नंबर 4. Wait a minute. Students, read your question number 4. What is your question number 4? Your question number 4. Explain. Question number 4 read कीजिए. Explain briefly different type of skeleton system. आपको briefly explain करना है different type of skeleton system. Your question number 4 is explain briefly different types of skeleton system. आपको एक्सप्लेन करना है ब्रीफली वेरियस टाइप. तो आपके स्केलेटन सिस्टम में आपने कितने पार्ट्स बनाए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल योर स्कल, देन रिब केस, देन आपका क्या आया था? आपकी बैकबोन थी. ठीक है, मोस्टली आपके 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया था. फिर उसके बाद आपका एक और पार्ट था लिम्स. आपके क्या थे? लिम्स, हैंड्स और लेग्स. ओके, इस तरह से आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था. उनको आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि आपके स्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स को आप ब्रीफली एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है? एक्सप्लेन ब्रीफली डिफरेंट टाइप ऑफ स्केलेटन सिस्टम. तो नंबर 1 यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्केलेटन सिस्टम. आपके कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं स्केलेटन सिस्टम. नंबर 1 स्कल. नंबर 1 क्या? आपका स्कल. आपका सबसे मेन पार्ट होता है स्कल. स्कल का आपको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं आप ब्रीफली? स्कल प्रोटेक्ट्स द ब्रेन. स्कल किसको प्रोटेक्ट करती है? ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है. स्कल प्रोटेक्ट्स द brain. Okay, then second is your rib cage. Yeah, it means up you can write backbone. Backbone, what is the purpose of backbone? Backbone protects the spinal cord.
बैकबोन प्रोटेक्ट्स द स्पाइनल कोड। इट मीन्स स्टूडेंट्स कि जो आपका स्कल होता है, स्कल क्या करता है, ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। आपका जो माइंड होता है, आपका जो मेमोरी बूस्टर होता है, वो क्या होता है, आपका ब्रेन होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है स्कल आपका। देन बैकबोन, बैकबोन प्रोटेक्ट्स योर स्पाइनल कोड्स। बैकबोन इज मेड अप ऑफ 33 वर्टिब्रे। ओके, थर्ड आपका पार्ट आता है रिबकेज। थर्ड इज योर रिबकेज। रिबकेज के केस में रिबकेज प्रोटेक्ट योर लंग्स। ओके, देन यू हैव टू राइट दिस रिबकेज प्रोटेक्ट लंग्स एंड हार्ट। ओके, रिबकेज किसको प्रोटेक्ट करता है, लंग्स और हार्ट्स को। देन पेयर ऑफ लिम्स कह सकते हो आप, या कह सकते हो ओनली लिम्स। लिम्स help in movement and other activities। कि जो आपका क्या होता है, मूवमेंट होता है ऑर्गन्स में, ठीक है, आपके बॉडी पार्ट्स मूव कर पाते हैं, आप मूव कर पाते हो, या कोई भी एक्टिविटी करते हो, किन की हेल्प के थ्रू करते हो, लिम्स की हेल्प के थ्रू करते हो। इवन दो मैंने राइट किया है मार्कर के ऊपर, वो भी हैंड्स की हेल्प से किया है, दैट इज अ पार्ट ऑफ ए लिम्स। सो आप कोई भी एक्टिविटी करते हैं, किसी भी तरह का मूवमेंट करते हैं, मैं पहले आपको दिखाई नहीं दे रही थी, अब आपको मैं दिखाई दे रही हूँ क्योंकि मैंने मूव किया है लेफ्ट टू राइट। इस तरह से आपको कह रहा है कि किसी भी तरह का मूवमेंट होता है वो किसकी हेल्प से होता है, लिम्स की हेल्प के थ्रू होता है। ओके, आपको कंप्लीट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इस क्वेश्चन में। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग द लाइव क्लास। नाउ यू हैव टू रीड योर क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 5? Your question number 5 says that what are the function of skeleton system? कि what are the function of skeleton system? कि skeletal system के क्या होते हैं, functions क्या क्या होते हैं, आपको क्या क्या help करता है skeletal system? Okay, so write down your question. What are the functions of skeleton system? कि आपके skeletal systems के क्या क्या functions है, आपको वो बताने हैं। ओके, तो skeletal system के आपके मेन फंक्शंस क्या होते हैं? इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू योर बॉडी। तो फर्स्ट आप इसका यूज करेंगे, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू योर बॉडी। शेप एंड सपोर्ट टू आवर, क्या कहता है आपको ये कि आपको जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो क्या देता है, आपकी बॉडी को एक शेप देता है और एक सपोर्ट देता है। ठीक है, स्केलेटन सिस्टम की वजह से आपकी बॉडी की क्या आती है, एक शेप आती है, और आपको क्या मिलता है, सपोर्ट मिलता है कि आप जिससे खड़े हो पाते हैं, मूव कर पाते हैं। ठीक है, वो किसकी वजह से मिलता है, आपको स्केलेटन सिस्टम की वजह से मिलता है। देन इट्स सेकेंड फंक्शन इज it helps in the movement of different body parts. So you have to write it helps in movement of different body parts. ओके, कि आपके किस में हेल्प करता है, मूवमेंट करने में, आपके बॉडी पार्ट्स जो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके मूव कराने में कौन हेल्प करता है, आपका स्केलेटन सिस्टम हेल्प करता है। उसमें जॉइंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपके ऑर्गन्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। ओके, एंड द थर्ड फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम इज इट प्रोटेक्ट्स मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स। कि आपके काफी क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इट प्रोटेक्ट्स मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स।
आप इतना नोट कर सकते हैं कि ये 3 क्या होते हैं, आपके फंक्शंस होते हैं स्केलेटल सिस्टम के। नंबर 1, इट गिव्स शेप एंड सपोर्ट टू आवर बॉडी, ये आपकी बॉडी को शेप देता है एंड सपोर्ट करता है। देन इट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, ये किस में हेल्प करता है, आपके बॉडी पार्ट्स के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को मूवमेंट कराने में। थर्ड, इट प्रोटेक्ट्स मैनी डेलिकेट ऑर्गन्स, कि आपकी बॉडी में काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होती हैं, डेलिकेट ऑर्गन्स होती हैं, उनको क्या कराता है, आपका प्रोटेक्ट कराता है। ओके स्टूडेंट्स, दैट इज योर थर्ड फंक्शन। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इतने में, अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो दिक्कत की बात होती है। अब 1 मिनट वेट कीजिए बेटा। ओके, नाउ वी इरेज दिस। अब आप रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या बोलता है, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। सो राइट द क्वेश्चन, डिस्क्राइब the various type, या describe the different type of muscles आपको क्या करना है, डिस्क्राइब करना है। आपके डिफरेंट टाइप के मसल्स होती हैं बॉडी में, उनको आपको डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, मसल्स के टाइप से एक्सप्लेन करने हैं आपको। ठीक है, तो मसल्स के आपके टाइप कितने होते हैं स्टूडेंट्स? आपने पहले भी रीड किया था चैप्टर रीडिंग में कि देयर आर 2 टाइप ऑफ द मसल्स, सॉरी 3 टाइप्स ऑफ द मसल्स, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक मसल्स। सो आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स इन अवर बॉडी। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ मसल्स इन आवर बॉडी। हमारे पास कितने टाइप्स के मसल्स हैं, मेनली आपके 3 टाइप्स के मसल्स हैं हमारी बॉडी में। नंबर 1 इज वॉलेंट्री मसल्स, सेकंड इज involuntary muscles, and the third is cardiac muscles. So first of all you have to write the definition of the voluntary muscles. Voluntary muscles, what do you understand by the word voluntary muscles? So voluntary muscles are those muscles which are under our control, कि वॉलेंट्री मसल्स वो मसल्स होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं, दैट मसल्स इज नोन एज द वॉलेंट्री। फॉर एग्जांपल योर हैंड मसल्स, ठीक है, योर लेग मसल्स, आर्म मसल्स, ये आपके क्या है, वॉलेंट्री नेचर के हैं। तो यू हैव टू राइट द डेफिनेशन ऑफ द वॉलेंट्री मसल्स, दैट इज द मसल्स which are under our control, that is वॉलेंट्री मसल्स। उनको आप क्या बोलते हैं, वॉलेंट्री मसल्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं इनके, हैंड, नेक, फिट। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं हैंड्स, नेक, फिट, एक्सेट्रा। ओके, नाउ you have to write down the second type of the muscles, that is involuntary. Involuntary muscles. What do you understand by the involuntary muscles? Involuntary muscles are those muscles which are not under our control. तो यहाँ पे आप क्या कहेंगे कि the muscles just opposite to the voluntary muscles, the muscles
which are not under our control, that is involuntary. एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं, जैसे एज लाइक हार्ट, आप हार्ट मसल्स यूज मत करिए फिर भी, लंग्स, ठीक है। और आपकी किस तरह की मसल्स होती है, लंग्स आप बोल सकते हो आपकी। और मसल्स का आप एग्जांपल देना चाहते हो, आप एलिमेंट्री कैनाल का दे दीजिए, ब्रेन्स का दे दीजिए, स्पाइनल कोड का दे दीजिए, स्पाइनल कोड, ब्रेन एक्सेट्रा, जो हमेशा आपको क्या कहते हैं, वर्क करती रहती है लाइफ टाइम। आपकी लास्ट एंड इंपॉर्टेंट मसल्स आर नोन इज कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स, that is a type of the involuntary muscles, but it is considered as a special part of the type of muscles. So in the cardiac muscles you have to write down the muscles found in the our heart. The muscles found in our heart is known as कार्डियक मसल्स। उन मसल्स को आप क्या बोलते हैं, आप कार्डियक मसल्स बोलते हैं, जो आपके हार्ट में फाउंड होती हैं, आपको हार्ट में मिलती हैं। डेट मसल्स इज नोन एज द कार्डियक मसल्स। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। इसका एग्जांपल अपने आप हो गया। एग्जांपल क्या होगा इसका, हार्ट मसल्स। क्या होंगे आपके, हार्ट मसल्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बेटा इस क्वेश्चन में कि आपकी 3 टाइप्स की मसल्स होती है, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एंड कार्डियक। Voluntary muscles are those muscles which are under our control. Involuntary muscles are those muscles which are not under our control, and cardiac muscles are a type of the involuntary muscles in which muscles found in our heart. पर्टिकुलर प्लेस बता रखा है जहाँ पे आपकी मसल्स मिलती है। अगर हार्ट के पास जो मसल्स मिलती हैं, हार्ट में जो मसल्स मिलती हैं, that muscles is known as the cardiac muscles. That is, it is your question number 6. Now you have to do your question number 7. What is your question number 7? Read your question number 7 from your book. Explain how do muscles work. Explain how do muscles work. कि आपको एक्सप्लेन करना है कि जो आपकी मसल्स होती है वो किस तरह से वर्क करती है, कैसे वो काम करती है। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है मसल्स आपकी क्या होती है, हेल्प करती हैं बोन्स के साथ मूवमेंट करने में। ये क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, रिलैक्स करती हैं मूवमेंट कराने के लिए। ठीक है, तो आप कैसे नोट कर सकते हैं यहाँ पे आप इनको, कि दे कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मूवमेंट, बट यू हैव टू एक्सप्लेन दिस। सो यहाँ पे आप क्या नोट करेंगे कि मसल्स इन आवर बॉडी होल्ड द बोन्स टुगेदर एंड हेल्प इन मूवमेंट। तो मसल्स वर्क कैसे करती है आपकी, इस तरह से आप ये कह सकते हो यहाँ पे कि मसल्स हैव एबिलिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। व्हेन ए मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब आपकी कोई भी मसल क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स होती है, इट शॉर्टेंस, कॉन्ट्रैक्ट्स it shortens and thickens. When a muscle relax, it returns to its original size. It returns to its original size. ओके, क्या बोला गया आपको कि मैंने मसल कॉन्ट्रैक्ट्स, कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट शॉर्टेंस, वो छोटी होती है और थिकनेस में आती है।
व्हेन ए मसल्स रिलैक्स इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, कि जब आपकी मसल्स क्या होती है, रिलैक्स होती है, तो अपने ओरिजिनल साइज में आ जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप कहेंगे कि जो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन होता है मसल्स का, हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द मूवमेंट। सो द contraction and relaxation helps the muscles for producing movement। ओके, क्या कहता है आपको इस क्वेश्चन का आंसर? आपका लास्ट क्वेश्चन था, व्हेन ए मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, कि आपकी कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, इट शॉर्टेन्स, ये छोटी होती है, एंड थिकन्स, ये मोटी हो जाती है। व्हेन ए मसल्स रिलैक्स, कोई भी मसल्स आपकी रिलैक्स होती है, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज, वो अपने ओरिजिनल साइज में क्या आ जाती है, कंप्लीट आ जाती है। सो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन हेल्प द मसल्स फॉर द प्रोड्यूसिंग मूवमेंट्स, कि जो आपका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो क्या करते हैं, मसल्स की हेल्प करते हैं। किस में हेल्प करते हैं? आपके मूवमेंट को प्रोड्यूस करने में आपकी हेल्प करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आंसर द फॉलोइंग आपके कंप्लीट करने हैं। आपकी जो बुक की एक्सरसाइज थी वो आपको बुक में फिल करनी है, और आपको ये क्वेश्चंस लर्न करने हैं। आपके असाइनमेंट में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स बेटा।